Right, gentlemen. Today we are continuing with our scope management chapter, which we started yesterday. We covered the first two processes. First, we created the scope and the requirement management plan, and then we developed collected the requirements from the stakeholders. Now, you must understand that we do have the guidelines for requirements and scope both, and we also have all the requirements collected from all the stakeholders, and they have been defined also. Now is the time when we develop the scope statement. This 5.3 defined scope is the process required to create the scope statement. We will develop the scope statement, and all those requirements which have been agreed by the both parties to be included in the project are now established as product scope, and that based on that product scope we will develop the project scope. So defined scope will basically develop the scope statement containing the product and project scope. So in this process it is developing a detailed description of the project and product. I mean, that is the scope. Yesterday there was a question that probably it is considered that scope statement is a summary document. No, sir. Scope statement is the most detailed document about scope ever developed in the life of a project. There are many other documents which were created before the scope statement, which included some kind of scope, but that was never the detailed scope. This is the most detailed form of scope because it differentiates between the product scope and the project scope. All the requirements have been shortlisted into this scope. Everything is crystal clear here. Key benefit of this process is that it describes the product, service and result boundaries and acceptance criteria. That is important from the product scope point of view, that what is the boundary, what is to be created, what are the limits within which that is to be created, and what would be shown as acceptance criteria on which, based on which we will pass that product or deliverable. So the ITTOs, the input, tools, techniques and outputs for defined scope we'll discuss now. As far as the inputs are concerned, they are pretty much traditional, which we understand. We need to have the project charter at this stage because we are developing the scope statement. Otherwise, we have project management plan, project documents, enterprise boundary factors, organization processes. All four things we already know, and we have been repeatedly using these things. Now, what is important in projects management plan, which is required to develop the scope, is naturally the scope management plan. From project documents, we will refer to the assumption log, the requirement document we just created in the previous process of collect requirements, and the risk register. In tools and techniques, expert judgment naturally about defining the scope, the specialty about product and project scope and all that, developing the scope statement, that would be required in the expert judgment. In data analysis, we should be able to do the alternatives analysis. What are the various alternatives available to us to do this project? Once we have established the product scope, we need to decide how we will produce this product. And there could be many ways, many alternatives open to us. We have to analyze those alternatives and select the most suitable option. Then we have to have decision making. Naturally, while we are doing the alternative analysis, we have to make the final decision on the selection of that alternative, and for that we may use multi-criteria decision making analysis, in which we allocate certain marks for each capability or capacity of that decision point, and ultimately sum it all up to find the total marks attained by that decision. So all the alternatives I had, I will do this multi-criteria analysis on that and ultimately decide on the best option. Then out of the interpersonal and team skills, we will use facilitation, because we will get this job done through our team and we want
brainstorming and other tools to be used. So facilitation will be done. The most important tool here is the product analysis. As soon as I have the product scope established, I need to understand that the product, the specifications, the functions, the features I have decided in the product scope. I must understand that very clearly. I have a thorough analysis of the product as to decide how to make it. So before we can invent the various alternatives, I have to have thorough analysis of the product which is to be created. So product analysis is a very important tool, and this is required only by this process define scope, what for the purposes of developing the scope statement. So product analysis is very much a part of the project scope statement. Now, as an output, we will develop the project scope statement, and naturally also we'll update some documentation like the assumptions. If any change in assumptions will be noted in the assumption log, or requirement documentation may also be amended in light of all this decision making. Then requirement traceability metrics. We discussed the requirement traceability metrics in yesterday's lectures. Right in the end of there's a very last slide, requirement traceability metrics. So if some data in the traceability metrics may have changed, we would refer to that. And ultimately, we may also be able to identify new stakeholders at this stage. The stakeholder register might be updated accordingly. So we have seen that. Now let's look at figure 5.9, in which the flow diagram is shown. In this flow diagram, there is nothing new except that we are getting these inputs from where? Project charter from develop project charter, project management plan or scope management plan from project management plan, assumption log, requirement documentation and risk register from project documents, and naturally the enterprise environmental factors and organization processes from the organization. What are we producing? We are producing, the most important thing is the project scope statement, and in addition to that we are producing a number of documentations which are being updated like assumption log, requirement document, requirement traceability metrics, and even the stakeholder register. Now, since all the requirements identified in collect requirements may not be included in the project, this is exactly what I said. Once you are collecting the requirements, do not really stop from hearing from what all the stakeholders are saying. You must note everything, no matter whether every requirement given by the customer or stakeholder will have to be included in the project or not. So here you will decide which are the requirements which are to be included in the product. Naturally, we have the base documents, we have the contract or the agreement or whatever the requirements have been given to us earlier before when the project was started. So we will take into account those requirements, those agreements, and see which requirement, new requirements, could be accommodated into that, could fit into the previous requirements or the scope given to us, which all are fitting into that, and what are the requirements which are non-starters, which are not included within the boundaries of our project. The define scope process selects the final project requirements from the requirements documentation developed during the collect requirement process. So it is kind of a sorting process, which are the most valuable, most important, and most in scope requirements which are to be included in the project scope. And there might be some unreasonable requirements. So for that, I have told you that we will have to communicate with stakeholder and convince them that this requirement may not be included in the project due to these reasons. And if you can resolve this matter with the stakeholder and he understands well and good, otherwise you may have to escalate the issue to the next highest level as if this matter could be resolved. So this is an issue. Issue escalation is required. But generally speaking, you should be able to resolve this matter right here. It then develops
A detailed description of the project and product, service or result. So we will describe the product. First we describe the product in detail, exact specifications, everything. And once that is defined, then in the same process, we will define what is the work involved, what is the project, what is the scope of the project, right? The preparation of a detailed project scope statement builds upon the major deliverables, assumptions, constraints that are documented during the project initiation. Right from initiation, you will see that we have created an assumption log which was input to us from the project documents and which we are updating also. This assumption log contained those assumptions and constraints which were taken as granted in the beginning. Now, as we move on in the life of the project, these assumptions and constraints will be built upon, and some of the assumptions and constraints will also be removed because there is an assumption which no more exists because of the factual data now available clearly portraying how a specific thing is to be done. So our assumption may have proven right or wrong, but now the facts are available, it is no more an assumption. Therefore, such an assumption has to be removed. Similarly, if there was a constraint, until and unless it is a constraint, we have to maintain it, otherwise it has to be removed. Moreover, as we proceed ahead with the life of the project, there might be new assumptions and new constraints. They will keep coming and we'll keep accommodating them. As we go into the detail of the project, there were certain assumptions which we took at the charter level, which were very high and high level assumptions. As we go in the breakdown of the project, we will have to make certain more assumptions which are of the lower level, and those assumptions will also be maintained until and unless they are proven right or wrong. During project planning, the project scope is defined and described with greater specificity as more information about the project is known. Existing risks, assumptions, and constraints are analyzed for completeness and added or updated as necessary. So these things will be, we'll keep updating them to the assumption log. They could be added, they could be deleted, they could be identified new ones and added again. Defined scope process can be highly iterative because as we move ahead, we will continuously be revealed on by certain facts and figures, and so the scope will be refined progressively. In iterative lifecycle approach projects, a high-level vision will be developed for the overall project. Now, uh, if you are going for agile or iterative lifecycle, uh, you would not know the total overall vision of the project. Total vision of the project, you won't know in detail. So you could create an overall uh, scenario of what direction you are going, and then you start creating the scope for every iteration you are undertaking only. You go into the detail of the scope for only current iteration. You do that, you do scoping of that, and you ultimately achieve that, and then move ahead with the next iteration. So iteration by iteration, the scope will be defined. But the detailed scope is determined one iteration at a time, and the detailed planning for the next iteration is carried out as work progresses on the current project scope and deliverable. So this is only true for iterative life cycle. Traditional project management does not justify that. This is only true for iterative. For traditional, we do it all in one go. We create our scope, although it can also, scope statement could also be amended, but that does not mean that we do not plan it in detail in the beginning. But in iterative, we do not plan the whole scope statement in the beginning, but we plan only for our scope statement for our iteration. So the inputs for defined scope, naturally we just saw it: charter, project plan, project documents, enterprise environmental factors, and organizational process assets.
And the tools for expert judgment, data analysis, which was only one tool there, alternative analysis, decision making, we had the multi-layer decision making, interpersonal and team skills, we had facilitation, and product analysis. These were the tools. As far as the product analysis is concerned, product analysis can be used to define products and services. It includes asking questions about a product or service and forming answer to describe the use, characteristic, and other relevant aspects of what is going to be delivered. So once I have the product scope defined, I must go to the market, I must go to the experts and ask questions from them as if I should understand how is it to be created. So to have a clear idea of the product, I have to gather some data, I have to analyze, and ultimately then only can I come up with various alternatives. Each application area has one or more generally accepted methods for translating high-level product or service descriptions into meaningful deliverables. Requirements are captured at a high level and decomposed to the level of detail needed to design the final product. So this is how it is. For example, like in Prince 2, they do not have a WBS, work breakdown structure. They have a product breakdown structure, the concept of product breakdown structure. Although now they call it work breakdown structure, but previously they are a product based methodology. Therefore, they have product breakdown structure. So they start with breaking down the main product of the project. They will break it down into smaller parts and then smaller parts, and ultimately to the level where each part can be handled separately. But the point is, even project WBS also supports this philosophy as one of the options. Problem is that if the smallest part of the product breakdown cannot be executed, it has to be work which has to be executed. So whatever is the smallest part of the product, that must be converted into a sentence which should portray it as a work. For example, if you are talking about a car as a product, maybe a wheel is the smallest part of the car. So a wheel is no work. Wheel is a product. Although it is the smallest part of the car, but it is still a product. What to do with this wheel? You may have to, prepare the wheel, create the wheel, construct the wheel, fix the wheel, whatever. So it must be converted into work. Only then it can be done. Therefore, no matter how you break your project down, even if you break it down like a product, but the lowest level should be work. The lowest level should be work, which is called a work package. We'll discuss that in the next step where we create the WBS. Then we must have the requirement analysis, system engineering, value analysis, and value engineering. All these various techniques for product analysis must a project manager must understand. I don't say that you must be an expert of each and everything, but you should have a fair idea about all of these things. How systems work, how do systems get analyzed, how do you engineer or design uh, the systems, how do you get value out of a system. So all this is important when you're designing your scope. The result is a scope statement and the product documents. The scope statement is a description of the project scope, major deliverables, assumptions, constraints, all of those things should be listed down in the scope statement. The project scope statement documents the entire scope, which includes the product scope as well as the project scope. It describes the project's deliverables in detail. It also provides a common understanding of the project scope among project stakeholders. So because we have interacted with the stakeholders, we have collected requirements from them. So the way they wanted to express their requirements are now understood to me. So I would know what is the common understanding
about the project scope for these stakeholders as if I can comply with them. It may contain explicit scope exclusions that can assist in managing stakeholder expectations. It enables the project team to perform more detailed planning, guides the project team's work during execution, and provides the baseline for evaluating whether requests for changes or additional work are contained within or outside the project boundaries. Now, this is important because, as I said, every whatever is to be done, the roles and responsibilities, the deliverables, all has to be defined here. What is the major deliverable of your project? That is your product scope. How is it to be created? What is the approach? What are the alternatives you have? And what is the approach selected? Why it is selected? And ultimately, uh, how you intend doing that according to the selected approach, meaning what? How do you break your project into phases? And what is going to be the output of each phase? Who is responsible for doing the work of each phase and for approving the work of each phase? And what is the acceptance criteria for each deliverable of each phase and of the whole project? This all has to be defined in your project scope statement. The degree and level of detail to which the project scope statement defines the work that will be performed and the work that is excluded, that is also out of scope work, can help determine how well the project management team can control the overall project scope. If you are very clear about what is in scope and what is out of scope, there is absolutely no problem for you. Everything is clear. So clarity counts a lot. If you are clear about what you are working towards, then probably you have less chances of going wrong. The detailed project scope statement, either directly or by reference to other documents, includes the following: product scope description, naturally. What is the product scope? What are the different deliverables? What is the acceptance criteria? And what are the project exclusions? What is not to be done? What is prohibited? What is not required to be done? So these four headings should be included in the project scope statement somewhere. So project scope description uh, would, as we already defined, would be progressively elaborated. As we move ahead with the life of the project, we will learn more in detail about the product, and maybe when we learn those things, we can add to the product scope. Deliverables: any unique or verifiable product result or capability to perform a service that is required to be produced to complete a process, phase, or project. So deliverable is not only the end product. Deliverable is anything coming out of any process, any phase, any activity. So anything which is a result of any working, small or big, is the deliverable. So these deliverables will contribute towards the larger deliverable and ultimately towards the end deliverable. These deliverables may be described at a summary level or in greater details. Acceptance criteria, as I said, is a set of conditions that is required to be met before deliverables are accepted at any level. At any level, whatever is coming out of a process, an activity, or a phase, or the overall project, whatever is coming out, whatever is the deliverable of that, would have an acceptance criteria, and that has to be satisfied. Exclusions: these identify what is excluded from the project, explicitly stating what is out of scope for the project, helps manage stakeholders' expectations and can reduce scope creep. You see, when we were collecting the requirements from the stakeholders, um, we could have clearly depicted that these are out of scope items and cannot be included in the project. We could have justified that. So these exclusions are very useful for throughout the project life cycle, because we will keep interacting with stakeholders and any unreasonable demand could have been clarified to them in that way. Scope statement, which is our output. Although the project charter and the project scope statement are sometimes perceived as containing
a certain degree of redundancy. They are different in level of detail contained in each. Now, that is exactly what I was trying to tell yesterday. Uh, you may find that the contents of project charter and contents of project scope statement are very similar. As far as the titles are concerned, the headings are concerned, they may look very similar, but there is a difference of level of detail. As I said, scope statement is supposed to be the most detailed document about the scope of the project. Charter will also have some scope, but that is not the most detailed document because charter is only an authorization for the project manager to mobilize the resources. So this may not be very detailed. The project charter contains high level information, while the project scope statement contains a detailed description of the scope components. These components are then progressively elaborated throughout the life of the project. Now, looking at this example, I usually myself get confused because the list shows a very long list for project charter and a very small list for project scope statement. This does not mean that charter is a larger document and project scope statement is a shorter document. Project charter is a shorter document instead, and project scope statement is the more detailed document. जी अहमद आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर आपकी सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस और बहुत ज्यादा लैग है एंड लिटरली लाइक नहीं समझ आ रही. अच्छा, मतलब आवाज में प्रॉब्लम आ रही है या तस्वीर में? सर आपकी आवाज आप यानी यू स्टार्ट अ सेंटेंस, आपका एक वर्ड समझ आता है, देन इट वैनिशेस, एंड देन जब आप कंक्लूड कर रहे होते हैं तो समझ आता है. ओहो, क्या किया जाए फिर इसको? नेट स्पीड तो आज ठीक है. सर शहरियार से नहीं सर शहरियार से पता करेंगे. शहरियार, आर यू हैविंग द सेम इशू? जी शहरियार सर, मैं काफी देर से मैंने भी हैंड रेज किया हुआ था, मैं भी यही पॉइंट आउट करना चाह रहा था, मुझे भी नहीं आवाज आ रही थी बिल्कुल भी. अच्छा, ओके, एक मिनट रुके जरा, मैं पहले तो उसकी स्पीड चेक कर लूं. और मेरा तो ख्याल है कि मेरी तरफ से स्पीड तो ठीक जा रही है आज, लेकिन कोई और प्रॉब्लम हो सकता है. सर सर्विस भी बंद हो रही है प्रोबेबली. यस, अभी भी सर आपकी आवाज. अच्छा, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक. श्योर सर. हाँ जी, मसला तो है, थोड़ी स्पीड कम है. अपलोड डाउनलोड दोनों स्पीड है मुझे अच्छी नहीं मिल रही, और मेरा ख्याल है कि दिस इज मोर अ मैटर ऑफ अपलोड स्पीड. फिर ऐसा करते हैं. सर आपने क्या कहा सर? स्पीड ठीक नहीं है, स्पीड बहुत कम आ रही है, आधी से भी कम आ रही है, तो गालिबन ये मसला होगा. तो अगर नहीं समझ आ रही तो फिर तो फायदा कोई नहीं ना, तो देन वी शुड क्लोज. सर मैं वही बता रहा हूँ सर, स्लाइड सही आ रही है लेकिन आपकी आवाज यानी यू स्टार्ट अ सेंटेंस एंड देन इट वैनिशेस, और फिर एंड पे या एक दो जुमले एक दो वर्ड समझ आते हैं एंड वो नहीं हो रहा सर. अच्छा, नहीं फिर तो कोई फायदा नहीं है. इसका मतलब है कि वी शुड क्लोज इट डाउन. और अब आई डोंट नो कल क्या सूरत हाल होगी. अब ये जो सूरत हाल इधर चल रही है पाकिस्तान में, ये तो शायद रहेगी अभी. अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजह से नेट कम है या क्या मसला है. सर मेजर रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे भी ये इशू आ रहा है. कराची में भी ये इशू आ रहा है, इंटरनेट सर्विस का और मोबाइल का भी इंटरनेट का ये इशू आ रहा है. ओके, अच्छा फिर ऐसा करते हैं, अभी फिर क्लोज डाउन कर लेते हैं और कल यही चीज दोबारा कर लेंगे. कल क्या है, कल थर्सडे है, फ्राइडे, फिर फ्राइडे, 2 दिन है ना हमारे पास.
मतलब वी आर वेरी स्लो, बट ठीक है, करते हैं फिर ऐसे ही। कल ट्राई करेंगे, अगर कल भी ना हुआ तो फिर परसों ट्राई करेंगे। इज इट ओके विद यू? सर वो मजबूरी है, लेकिन सर नॉट ओके। कुछ हो नहीं सकता, यानी कुछ हो नहीं सकता। आप एक काम कीजिए ना कि उतनी देर में आप ये इस चैप्टर को और इससे अगले चैप्टर को जरा अच्छी तरह से अपने तौर पे इस टाइम के अंदर पढ़ लें। यस सर। ताकि जब मैं डिस्क्राइब करूं तो आपको आसानी हो, फिर हम जल्दी जल्दी निकल जाएंगे फिर। सर मुझे सिर्फ अब ये सर आपके ख्याल में 5.3 और 5.4 कर लिया जाए? नहीं पूरा करें आप, क्योंकि मैंने तो उसको एक ही दिन में खत्म कर देना, ये तो स्पीड हमारी बहुत स्लो हो जाती है। बस ठीक है सर। इससे आगे कंटिन्यू करूंगा, 5.4 से शुरू करूंगा कल। और ये तो स्कोप स्टेटमेंट की हम बात कर रहे थे। चलें जी, फिर लेट्स कॉल इट अ डे। सर 10-15 मिनट्स और ट्राई कर लें, शायद ठीक हो जाए, एंड देन अगर वो फिर भी नहीं होता तो देन वी कैन क्लोज इट ऑफ आई गेस। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं इसको बंद करता हूं और मैं 15 मिनट या आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद मैं दोबारा लॉग इन करता हूं, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल की बदली या नहीं बदली। सर वो उससे कोई फर्क नहीं वैसे पड़ेगा, क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग इज कि लाइक अगर हम 15 मिनट्स और ट्राई करते हैं, आप अगर यही लेक्चर करते रहे एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट, कि स्पीड बेहतर होती है। अभी आपको आवाज आ रही है सही? यस, अभी आ रही है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट। अच्छा, क्यों अपना शहरयार आपकी तरफ भी सही आवाज आ रही है? जी सर, इस वक्त आ रही है। चलें फिर कंटिन्यू करते हैं फिर, और क्या हो सकता है। अगर सर वो बाद में यानी लेट्स सी 10-15 मिनट्स ट्राई कर लेते हैं, इफ इट डजंट वर्क वो कट ऑफ करना तो वी कैन डू इट एनी टाइम। हाँ ठीक है, आप फिर हाथ खड़ा कर दीजिएगा जब आवाज आनी बंद हो जाए, तो फिर हम वहां से उसको सिलसिले को कर देंगे। ठीक है सर। राइट जी, तो आई वाज showing you the difference between the charter and the scope statement. Although it appears that charter may look like having more headings, but these are not exactly the headings. This is a very brief talk about these topics. They may be discussed in the charter. You see, in charter, we should describe the project purpose, your project objectives, your requirement, high level requirements. You see, these are high level requirements, whereas scope will talk about the low level requirements. Similarly, high level product description. So everything in charter is high level, and whatever you discuss in charter, everything has to be discussed in scope in further detail. But here, the most important headings in scope statement are the project scope description, project deliverables, acceptance criteria, and project exclusion. But that is not all. But generally speaking, scope statement is a much more longer and much detailed document. Then are the project documents updates, which include the assumption log. Naturally, assumptions might have changed. The requirement documentation and traceability metrics that might get updated as a result of this, and stakeholder register. So these things will be updated into the project documents. Next we have is create WBS, work breakdown structure. So this is the fourth process, and this is the last process of planning in of scope of planning in scope management. This is the fourth process of scope management, and this is the last process in planning process group as far as scope is concerned. Therefore, whatever we have created in the scope statement will have to be broken down to a digestible level, and that digestible level is where the work can be defined, and I called it the work package. The lowest breakdown level of work breakdown structure will be the work package. Now, how you divide the work breakdown structure? It could be dividing the work into smaller work, or it could be dividing the product into smaller product, or ultimately the last level will always, in all the cases,
would be the work package. No matter you have done the product breakdown structure, but the lowest level must be work package. Prince 2, as I was saying earlier, in previously back in 2001, they did not used to call their work breakdown structure as work breakdown structure. They used to call it product breakdown structure. But now they also call it work breakdown structure. But as I said, they are product oriented methodology. Therefore, they start dividing their WBS by product. But the lowest level would become ultimately the work package. And work package, though, is the lowest division of the WBS, but that does not mean that it cannot be further subdivided. Work package by definition, it means that this is a package of works. More than one work will be included into that. So work package will include a number of activities. So that would be subdivided later when we are trying to define the activities, and activities are not defined here. Activities are defined in project schedule management. So once we go over to that, the next chapter, there we will be breaking open the work packages into activities, and then we'll do a lot many other things there as well. Create WBS is the process of subdividing project deliverables and project work into smaller, more manageable components. So that more manageable component at the lowest level is called work package. Key benefit is it provides a framework of what has to be delivered. So it is, graphically, or you can say diagrammatically, a hierarchical chart will be shown up, and we would exactly know what is under what. So things are being broken down just like an organizational chart. This process is performed once or at predefined times. The input outputs are as shown on the diagram. I think slides are not moving. You are still seeing the old slide of the differences of scope, charter and scope statement. Let me refresh that. Take a while. Let's see if it is updated. Right. So you can see that here also we have got the same 4 inputs: the project management plan, project documents, requirement documents, project document, enterprise normative factors, and organization process assets. Naturally, in project management plan, I need just to have the scope management plan, because now I'm managing the scope. So all the guidance I need to do, the creation of the WBS is from scope management plan. And project document, I require the scope statement, because this is instrumental for me, because it defines the acceptance criteria and all those things. So it is instrumental for me to define the work breakdown structure, and the requirement documentation must also be in front of me. The simple thing I need to do here is naturally the expert judgment, and the second important thing is decomposition. Decomposition is a skill of breaking things open. Now this is a logical skill. If how can you, if you have got a TV set and I ask you to break it open, how would you do it? Naturally you will try to open it through the proper unscrewing the unscrewing it, and part by part you will be decomposing it. So this is a logical process. So any situation I'll give you, you will try to decompose that situation into smaller parts and smaller parts. But remember, decomposition is not the sequence of work. It might look like a sequence of breaking the TV open, breaking that work open, but that is not exactly in the sequence in which the work has to be done. You are just trying to understand the work, therefore you are breaking it open into smaller parts, but those smaller parts is not actually the sequence of activities. Meaning what? It is the first thing you break open is not the first thing you do in the project.
आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। जी शहरियार, बात समझ आई? सर डिस्टॉर्शन थी थोड़ी सी, काइंडली थोड़ा रिपीट करते हैं इसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम WBS को ब्रेक डाउन करते हैं, काम को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम कहते हैं जी ये प्रोजेक्ट इन 3 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। फिर एक हिस्से को कहते हैं इसके अंदर मजीद 4 हिस्से निकाले जा सकते हैं। जब हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि वो कौन कौन से हिस्से हैं और क्या है, क्या ये सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है काम का? मेरा पॉइंट ये है कि ये सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ डीकम्पोजिशन है। लेकिन आमतौर पे जब लोग WBS क्रिएट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह सोचना शुरू करते हैं कि अगर एक बिल्डिंग बनानी है, पहले ये करूंगा तो फिर ये करूंगा फिर ये करूंगा, तो वो डीकम्पोजिशन इसको समझते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्क, दिस इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ वर्क, बिकॉज अभी तक तो एक्टिविटीज का पता ही नहीं है। अभी तक तो जो चीज मेरे सामने वो वर्क पैकेज है, अभी तो इस वर्क पैकेज में खुलना है। जब खुलेगा तो फिर हम सोचेंगे कि क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है। डीकम्पोजिशन का कोई ताल्लुक नहीं है सीक्वेंस से, इसलिए डीकम्पोज करते वक्त आप सीक्वेंस में मत सोचें। यहाँ पे आप सिर्फ किसी भी तरीके से एक पॉइंट है। जी 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 सर, ये जैसे अभी हम अगर लेट से हमें पता है कि स्ट्रक्चर खड़ा तब तक नहीं होगा जब तक एक्सकेवेशन नहीं होगी। ओके, तो ये मतलब सीक्वेंस में तो बंदा डिकम्पोज करेगा ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो उससे आपका मतलब नहीं ना। इस वक्त आप ये बताएं कि आपका प्रोजेक्ट कितने हिस्सों में होना है, ठीक है ना? वो बात मैं आपकी मानता हूं कि जी उस वक्त तक ये नहीं होगा, लेकिन क्या ये तो आप कह सकते हैं कि वो तमाम काम जो इस बिल्डिंग की प्रिपरेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनको एक सेटअप बना दो काम। वो तमाम काम जो ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद और अंडरग्राउंड होने वाले हैं, बुनियादें बनाना और ये वो, फिर आप कहेंगे वो तमाम काम जो स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए यूज करने हैं, शटरिंग करनी है, दीवारें बनानी है, जो भी है। तो कहने का मतलब है कि आप कामों को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी सीक्वेंस में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ब्रेकडाउन करने का। अब उसके अंदर कोई सीक्वेंस वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक मैंने घर बनाना है, उस घर बनाने में इलेक्ट्रिकल वर्क एक मेरा ब्रांच हो गई, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग एक ब्रांच हो गई, उसके बाद जनाब कंस्ट्रक्शन अपना वो एक ब्रांच हो गई, और फिनिशिंग एक ब्रांच हो गई। मैंने इन 4 हिस्सों में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया। अब मुझे बताएं कि इसमें कौन सी चीजें जो वो सीक्वेंस में है। मतलब जब प्लम्बिंग हो रही होगी तो इलेक्ट्रिसिटी भी शायद हो रही हो, और तो फिर शायद कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ हो रही हो। तो मतलब जरूरी नहीं है कि जब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो ब्रेक डाउन किसी तरतीब में हो, किसी सीक्वेंस में हो। ये जो डिकम्पोजिशन करने का मतलब है, ये है कि किसी भी तरीके के साथ आप अपने मुकम्मल टोटल काम को किस तरह से कैटेगराइज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। आप उसको क्या कहते हैं, स्पेशलिटी वाइज डिवाइड करना चाहते हैं, आप उसको प्रोडक्ट वाइज ब्रेक करना चाहते हैं, आप उसको वर्क वाइज बेस्ड ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे मर्जी करें, आपकी आजादी है। WBS बनाना आपकी अपनी सलाहियत है। लेकिन उसमें अगर आप ये समझ लें कि सिर्फ सीक्वेंस ही की है तो वो गलत होगा। तो आपने सीक्वेंस में सोचना जरूरी नहीं है, या यूं समझे कि ना सोचें तो बेहतर है। आप सिर्फ चीजों को खेलेंगे, इसको किससे तोड़ा जा सकता है, तोड़ा क्या सकता है। देखें, ये नहीं कि इसके बाद क्या किया जा सकता है, आप कहें इस चीज को, इस काम को कितने हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, बस सीक्वेंस नहीं सोचना। बात समझ आई? चलिए यस सर। लेकिन सर इसमें मुझे हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है WBS में कि मैंने कई ऑफिशियली भी देखा है WBS बने हुए कि वो एक्टिविटीज और डिलीवरेबल में फर्क शायद मुझे नहीं समझ आता, या बनाने जो मैंने देखा था उसमें शायद मुझे नहीं आ रहा था। इसमें सर हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? जैसे अभी मैंने एक्सकेवेशन की एग्जांपल दी, मेरा ख्याल है कि एक्सकेवेशन एक एक्टिविटी है, ये कोई डिलीवरेबल नहीं है। पहली बात तो ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जब WBS बनाया जाता है तो वो एक्टिविटी लेवल तक ही ले जाते हैं उसको, तोड़ तोड़ के इतना बारीक नहीं जाएं कि उसे एक्टिविटी लेवल पे ले जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्क पैकेज का लेवल क्या होगा।
ये भी डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है कि वर्क पैकेज का क्या लेवल होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर और प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी के ऊपर। अगर आपका प्रोजेक्ट कोई मिसाल के तौर पे अगर एक घर बनाना है तो मेरा वर्क पैकेज शायद दीवार बनाना हो, लेकिन अगर आपने पूरा शहर आबाद करना आपका प्रोजेक्ट है तो एक दीवार उसका वर्क पैकेज तो नहीं हो सकता। उस सूरत में तो शायद उसका वर्क पैकेज एक पूरा सेक्टर होगा, एक पूरा इलाका होगा, रीजन होगा एक पूरा। तो कहने का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर के टोटल काम की मुनासबत से जो सबसे छोटा कंट्रोलेबल आइटम होगा उसके पास, वो उसका वर्क पैकेज है। जहां वो समझता है कि मैं इससे ज्यादा चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वहां पे वो छोड़ देगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि वर्क पैकेज वो लेवल है जहां पर वो आसानी से उस वर्क पैकेज के ऊपर रिसोर्सेज एस्टिमेट कर सके, कॉस्ट एस्टिमेट कर सके, स्केड्यूल एस्टिमेट कर सके। ये वो लेवल है जहां पे वर्क पैकेज असाइन हो सकता है। ठीक है जी, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ घर बनाने की एग्जांपल में दीवार का बनाना एक वर्क पैकेज है। जैसे आपने क्या कहा था, फाउंडेशन क्या कहते हैं आप, क्या चीज आपने कही थी? एक्सकेवेशन। अब देखें एक्सकेवेशन कोई फिर वही बात आ जाती है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगा। एक प्रोजेक्ट में वो एक्टिविटी भी हो सकती है, एक प्रोजेक्ट में वो वर्क पैकेज भी हो सकती है। लेकिन आम जो मैं समझ रहा हूं इसको, एक्सकेवेशन इज अ वर्क पैकेज इन विच वी विल हैव टू डू सर्टेन एक्टिविटीज। मिसाल के तौर पे एक्सकेवेटर का किराए पे खरीदना, उसके ऊपर जनाब ड्राइवर को हायर करना, उसको जनाब जगह समझाना, बताना, उससे काम करवाना, वो पोर्शन बताना, पोर्शन ए, पोर्शन बी, पोर्शन सी। सो दिस एक्सकवेशन इज अ वेरी क्या कहते हैं, वास्ट टर्म। एक्सकवेशन कौन सी एक्सकवेशन की बात करें? सारे घर की एक्सकवेशन एक एक्टिविटी है? सॉरी सर, सारे घर की एक्सकवेशन एक एक्टिविटी नहीं है। उसको तो बहुत से हिस्सों में बांटा जा सकता है। मे बी ये सारे घर की एक्सकवेशन इतना बड़ा काम हो कि ये एक वर्क पैकेज ही ना हो, ये एक से ज्यादा वर्क पैकेज हो, कि घर के बाईं तरफ की एक्सकवेशन, घर के दाईं तरफ की एक्सकवेशन, घर के सामने की एक्सकवेशन, दे मे बी सेपरेट वर्क पैकेजेस। सो एक्सकवेशन इटसेल्फ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज, एंड दोज आर द एक्टिविटीज जहां पे बेस करके आपने डिटेल प्लानिंग करनी है। क्यों जी, बात समझ आई कुछ सर यार? जी सर, थैंक यू। ओके जी, तो ये हो गया डीकंपोजिशन। तो नतीजे में जो चीज निकलेगी वो स्कोप बेसलाइन है, लेकिन दरअसल स्कोप बेसलाइन के अंदर क्या है ये हमें मैटर करता है। देखिए जी, जो हम चीज बनाना चाह रहे हैं वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, ऊपर एक आदमी, उसके नीचे चार आदमी, फिर नीचे 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 खुलता जाता है। इसी तरह WBS ऊपर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के नीचे उसके मे बी फेजेस हो, मे बी उसके नीचे कुछ और फर्दर डिविजन हो, और डिवीजन होते होते वो सबसे लोएस्ट पार्ट उसका वर्क पैकेज कहलाता है। तो ये जनाब हमारा WBS है। लेकिन ये तो बन गया, लेकिन वो जो सबसे लोएस्ट पार्ट के ऊपर वर्क पैकेजेस हैं, अगर उन सारों की एक लिस्ट बना ली जाए, ऑफ ऑल द वर्क पैकेजेस इन दिस प्रोजेक्ट, और उनको कोई नंबर एलोकेट कर दिया जाए और कोई थोड़ी सी समरी उसकी ब्रीफ लिख दिया जाए, डिस्क्रिप्शन उसकी, कि ये वर्क पैकेज क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। दिस इज अ ब्रीफ फॉर्म ऑफ अ WBS डिक्शनरी। दिस थिंग इज कॉल्ड अ WBS डिक्शनरी। अगर आप IT से हैं तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक चीज होती है, वहां टर्मिनोलॉजी होती है डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी इसी किस्म की चीज है कि डाटा तो आपका है बहुत सारा पड़ा हुआ, लेकिन उस डाटे का इंडेक्स बना लिया जाता है, उसको हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। यूं समझिए कि ये मैंने वर्क पैकेजेस का इंडेक्स बना लिया है और उस इंडेक्स के बारे में लिख लिया, रेफरेंस लिख लिया कि ये चीज क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका रेफरेंस क्या है वगैरह। तो ये मेरा WBS डिक्शनरी बन गया। तो WBS डिक्शनरी, और इसके अलावा जो पिछले स्टेप में आपने स्कोप स्टेटमेंट बनाई थी उसको भी शामिल कर लें, तो ये मेरी स्कोप बेसलाइन बनती है। लेकिन याद रखिएगा कि ये किस सूरत में इसको स्कोप बेसलाइन में कह रहा हूं। आई एम कॉलिंग इट अ स्कोप बेसलाइन ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ जो आपका प्रिडिक्टिव लाइफ साइकिल है। अगर आपका एजाइल लाइफ साइकिल हो या आपका इटरेटिव लाइफ साइकिल हो, तो आपका स्कोप बेसलाइन एक दफा नहीं बनता, फिर आपका हर आइट्रेशन का अलग अलग स्कोप बेसलाइन बनेगा।
मेरा ख्याल है इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें इस बात को, फर्क को हम कल वाली लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं कि स्कोप एक दफा बनता है एक प्रेडिक्टिव लाइफ साइकिल वाले प्रोजेक्ट का, लेकिन जहां आइटरेटिव प्रोजेक्ट होता है या एजाइल प्रोजेक्ट होता है, वहां पे हम हर आइटरेशन के लिए अलग अलग स्कोप डिटरमिन करते जाते हैं और उतना उतना स्कोप पूरा करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अपडेट में अजम्पशंस लॉग होंगे और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आप अपडेट होगी। मैं इसको स्किप करता हूँ जी, ये अपना क्रिएट डब्ल्यूबीएस पे आते हैं जी। क्रिएट डब्ल्यूबीएस को थोड़ा स्ट्राइप इसने किया है जी। डब्ल्यूबीएस जो है एक हायरार्किकल डीकंपोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया भी कि ऊपर से नीचे की तरफ खुलता है, ऑफ द टोटल स्कोप ऑफ वर्क। टोटल स्कोप जो प्रोजेक्ट वर्क था उसको हम छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, स्कोप को छोटे छोटे स्कोपों में बांटते हैं, फिर उससे नीचे टू बी कैरिड आउट बाय द प्रोजेक्ट टीम टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड क्रिएट द रिक्वायर्ड डिलीवरेबल। तो हम इसको तोड़ इसलिए रहे हैं कि हम छोटे ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को छोटे टुकड़ों में बांट सकें और अल्टीमेटली वो रिक्वायरमेंट जब वो डिलीवरेबल जो है वो डिफाइन कर सकें कि भाई ये डिलीवर करना है, ये डिलीवर करना है, ये डिलीवर करना है, तो उसको उस हद तक ब्रेक कर सकें। WBS organizes and defines the total scope of the project and represents the work specified in the current approved project scope statement. स्कोप स्टेटमेंट में जितना काम दिया हुआ है ना, WBS सारे को इनकम्पस लाजमी करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि WBS आप बना लें और वो स्कोप स्टेटमेंट को पूरी तरह से कवर ना करता हो, ये गलत हो गया। WBS has to represent and cover whole of the scope which is represented in the scope statement. इनपुट्स की हद तक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज नहीं है जो दोबारा रिपीट की जाए। सिर्फ टूल्स एंड टेक्निक्स में डीकंपोजिशन का स्किल है जो कि नया है। तो डीकंपोजिशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि चीजों को तोड़ने, डिवाइड करने और फिर उसको मजीद सब डिवाइड करने का काम करती है। मतलब स्कोप को मैं छोटे स्कोप में, छोटे टुकड़ों में और छोटे टुकड़ों में या डिलीवरेबल को टुकड़ों में बांटता चला जाता हूं इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट। जितने छोटे टुकड़े होंगे उनको मैनेज करना आसान हो। आपको कोई कहता है घर बनाओ तो मैं आई एम कंफ्यूज्ड, लॉट कंफ्यूज्ड, यार मैं कैसे बनाऊंगा ये घर। लेकिन मुझे ये कहा जाता है घर के अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर एक दरवाजा है, दरवाजे की लकड़ी है, लकड़ी को तैयार करना है, ये तो करो। तो नो इट इज मोर मैनेजेबल। हाँ यार लकड़ी तो मैं तैयार कर लूंगा। तो एक एक काम को समझना और उसके ऊपर साइन करना और सारा हिसाब किताब करना आसान हो जाता है। इसको मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड किया जाना चाहिए। वर्क पैकेज इज अ वर्क डिफाइंड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द WBS। और लोएस्ट लेवल ऑफ द WBS मैंने आपसे क्या डिफाइन किया कि वो वर्क पैकेज होता है फॉर विच कॉस्ट एंड ड्यूरेशन कैन बी एस्टिमेटेड एंड मैनेज। मतलब अच्छा मैं ये भी बताता चलूं कि ऑल्दो वर्क पैकेज मैंने बोला कि इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज, बट दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। दैट इज टू डिटेल्ड अ ब्रेकडाउन एंड दैट इज ओनली टू बी यूज्ड बाय द टीम मेंबर्स एज फार एज द प्रोजेक्ट मैनेजर इज कंसर्न। उसको जहां तक चीजों को कंट्रोल करना है वहां तक का हिसाब किताब वो करेगा और उसके इंटरेस्ट का लेवल है वर्क पैकेज। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ये वर्क पैकेज जो है ये मजीद टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, इसकी एक्टिविटीज बनाई जा सकती हैं और बनानी पड़ेंगी अगर काम करना है तो। लेकिन मैं जो प्रोग्रेस ले रहा हूँ वो वर्क पैकेज के हिसाब से ले रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ये घर है, घर की दीवार एक वर्क पैकेज है। अब मुझे बताओ ये इस वर्क पैकेज पे कितना काम हो गया। आप कहते हैं जी ये आधी दीवार बन गई। अब वो दीवार खाली ये वर्क पैकेज तो काम नहीं है सारा। इस वर्क पैकेज में ईंटों का खरीदना, ईंटों का लगाना, प्लस्तर करना, ये करना, पेंट करना सब शामिल है। तो उस दीवार में कई एक्टिविटीज शामिल है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरेस्ट सिर्फ दीवार के बनने से है और बाकी उसकी एस्टिमेशन डिटेल, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना सीमेंट लगेगा, ये टीम का काम है। टीम वो एस्टिमेशन करती है और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट मैनेजर को कहती है जी इस वर्क पैकेज के लिए ये जो दीवार आपने बनानी है, इस वर्क पैकेज के लिए हमें इतना सीमेंट, इतनी ईंटें, इतने ये चीजें दे दें, इतने रिसोर्सेज दे दें। सो एक्टिविटी लेवल के ऊपर हम मजीद डिटेल कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के कंट्रोल के हवाले से वर्क पैकेज इज मोर उसकी समझ में ज्यादा आसानी से आता है। The level of decomposition is often guided by the degree of control। अच्छा ये वही बात आ गई कि मैं प्रोजेक्ट को कितनी हद तक कंट्रोल करना चाहता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए
एक्टिविटी की हद तक माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दूं, तो मुझे खुद बताइए कि मेरी टीम में या मेरे वर्कर के पास क्या आजादी रहेगी। हर काम में तो मैं उसके कंधे के ऊपर चढ़ा हुआ बैठा हूं। इसका मतलब है कि मुझे उसको उसकी आजादी उसको देनी है और मुझे उससे ऊपर के लेवल पे कंट्रोल करना है। यही अच्छा तरीका है, डेलीगेट किया जाता है काम निचले लेवल के ऊपर। तो मैं वर्क पैकेज लेवल तक मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ कंट्रोल। दिस इज द मोस्ट फीजिबल जो तरीका है कि वर्क पैकेज लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज करता है और उसके नीचे अंदरूनी जो डिटेल्स हैं वो जो भी टीम लीड हैं या जो भी कोई लोग हैं वो करते हैं। लेकिन इसने ये कह दिया यहाँ पर कि आप जितना ज्यादा डिग्री ऑफ कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते हैं उतना अंदर घुसते चले जाएं। मतलब जितना आप अंदर घुसेंगे उतना माइक्रो मैनेज करेंगे। आप चाहें तो एक्टिविटी लेवल पे चले जाएं, बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, आप कोई न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं, कोई ऐसा हिसाब किताब करें तो शायद वहां पे ठीक है इतने लेवल तक डीप जाना, क्योंकि वी कांट टेक चांसेस देयर ना। तो देयरफॉर यू मे बी माइक्रो मैनेजिंग, यू मे बी, आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत डीप है। मगर ऑन अदर हैंड ऐसा भी मुमकिन है कि कुछ प्रोजेक्ट्स में हम बहुत ही ज्यादा सतही लेवल पे कंट्रोल रखें और ज्यादा चीजें डेलीगेट नीचे करें, जहां पे हमें ट्रस्ट ज्यादा है, काम की सेंसिटिविटी कम है। तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन आप ये डिसाइड करते हैं कि आप डिग्री ऑफ कंट्रोल आपकी क्या है और आपको कितना डीप जाना है या कितना डीप डिकम्पोज करना है, या वर्क पैकेज कहाँ आ जाएगा। वर्क पैकेज जहां आएगा वो लेवल है जो आपका कंट्रोल। प्रोजेक्ट मैनेजर इस लेवल तक कंट्रोल करना चाहता है जिस लेवल को हम WBS कहते हैं। लेवल ऑफ डिटेल फॉर वर्क पैकेजेस विल वेरी विद द साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बात मैंने अभी आपसे कही है जी शहरियार। जी सर, मैंने सर ये PMBOK 5 में शायद ये पढ़ा था कि WBS का जो आइडियल डिकम्पोजिशन होनी चाहिए वो 5 से 6 लेवल तक होनी चाहिए। नहीं यार, 5 से 6 तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो कत्ल कर दिया आपने। कहाँ लिखा है PMBOK 5 में? आज तक PMBOK में ये नहीं लिखा हुआ। ये तो बड़ी आपने खतरनाक बात कर दी है। 3 लेवल की डिकम्पोजिशन आइडियल होती है। 5 तो माइक्रो हो जाएगी, बहुत ही माइक्रो हो जाएगी। 5 बहुत ज्यादा है। देखो ना, मेरी बात सुनो, प्रोजेक्ट है ये अगर हाँ जी जी सर बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर मैं फर्स्ट लेवल प्रोजेक्ट को कहूँ, सेकंड लेवल फर्स्ट करें फेज को कहूँ, तीसरे लेवल पे काम वर्क पैकेज आ जाना चाहिए। ये है एक अच्छा कंट्रोल। अगर आप बहुत ज्यादा तफसील में आप कहते हैं नहीं यार बड़ा सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, तो एक लेवल और ऐड कर लें, और भी सेंसिटिव है। आइडियल तो 3 है लेकिन 5 बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करें, शायद 5वें लेवल के ऊपर आप कहेंगे अच्छा मैं न्यूक्लियर पे काम करूंगा। लेकिन ये तो जितना डीप जाएंगे उतने अपने लिए आप मुश्किलात पैदा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मुश्किलात पैदा करेंंगे और मैनेजेबिलिटी डिफिकल्ट होती चली जाएगी क्योंकि आप माइक्रो मैनेज कर रहे होंगे। तो बेहतर यही है कि 3 से ऊपर ना जाए आप। और ये उधर कहीं नहीं लिखा हुआ, ये गलत आप कह रहे हैं कि 5th एडिशन में लिखा हुआ है, वहां कहीं नहीं लिखा हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। सर सही होगा, मुझे गलती जी जी हाँ जी। इस पॉइंट के ऊपर और किसी का तो नहीं सवाल? इज इट ऑलराइट जी? आवाजें ठीक आ रही हैं सबको अभी? सर है डिस्टॉर्शन है सर, अभी भी है डिस्टॉर्शन? अवैस आप बीच में गायब हो गए थे, आवाज आ रही है आपको ठीक ठाक या नहीं आ रही? अहमद आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर मुझे। अच्छा, अवैस को भी आ रही है। इसका मतलब कंपैरेटिवली ठीक ही जा रहा है। डिस्टॉर्शन तो खैर है, लेकिन चले मैं रिकॉर्डिंग तो आपको भेज ही दूंगा, रिकॉर्डिंग में तो पूरा ठीक आता है। अच्छा जी, तो ये लेवल जी जी आवाज आ रही है। अच्छा, वेरी गुड सर आवाज आ रही है। वंडरफुल। अच्छा, ये डीकम्पोजिशन की बात हो गई और डीकम्पोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और ये शहरयार ने इसको उठाया भी, बड़ा अच्छा किया इस बात को, क्योंकि ये वो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं। डीकम्पोजिशन को समझते नहीं हैं लोग और ये कितना लेवल डीप जाना है, क्या करना है, इसमें मसाइल होते हैं। Decomposition of the total project work into work packages generally involve the following activities. क्या क्या है ये? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द डिलीवरेबल एंड रिलेटेड वर्क। जो चीज बनानी है, जो काम करना है, उसको तो देखो, उसको समझो, उसको देखो, एंड देन
स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द WBS, डिकम्पोजिंग द अपर WBS, सबसे ऊपर का लेवल प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट को कितने हिस्सों में बांटना है और कैसे बांटना है। भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे प्रोजेक्ट को फेजेस में बांटें, चाहे सब प्रोजेक्ट में बांटें, चाहे आप उसको सब प्रोडक्ट में बांट दें, जिस तरह आपका दिल करता है आप उस तरह से ब्रेक डाउन करें, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, द लास्ट लेवल शुड बी अ वर्क पैकेज, इट शुड नॉट बी अ प्रोडक्ट और डिलीवरेबल। जो आखिरी लेवल है ना, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी पहिया, पहिया कोई काम नहीं है, पहिया का लगाना एक काम है, पहिए का घुमाना एक काम है, तो मतलब उसको काम की शक्ल में कन्वर्ट करना होगा तो वर्क पैकेज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो भले आप प्रोडक्ट ब्रेक डाउन करते जाएं, आपके गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सिस्टम फलाना सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फलाना सिस्टम, वो चलते जाएं आप, लेकिन आखिरी जो लेवल होगा उसको आप जरूर बताएं कि करना क्या है। तो ये जनाब डिकम्पोजिंग की बात होगी, अपर लेवल जो है इनटू लोअर डिटेल्ड कंपोनेंट्स में जाएगा। एंड देन डेवलपिंग एंड असाइनिंग आइडेंटिफिकेशन कोड। अब जैसे ही आप उसे ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको एक नंबरिंग सिस्टम से डिवाइड कर दें। जैसे थीसिस वगैरह लिखने के लिए आप कहते हैं जी एक नंबरिंग स्कीम बनाते हैं, 1, 1.1, 1.1.1 वगैरह वगैरह, उस तरह की कोई नंबरिंग स्कीम या अपनी कोई बना लें, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मेथड चल रहा है उसके साथ कर लें, लेकिन कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। हर लेवल का, हर एक्टिविटी, हर वर्क पैकेज का कोई नंबर होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बाद में हम इन एक्टिविटीज को, इन चीजों को रेफर कर सकेंगे और अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकेगा। वेरीफाइंग दैट द डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द डिलीवरेबल इज अप्रोप्रिएट। मैंने कहा था प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर करेगा ना, तो अब तो कॉम्प्लेक्सिटी भी उसके हिसाब से ही है। प्रोजेक्ट पता नहीं कैसा आप करें, हमें क्या पता आप किस किस्म का प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, कितना बड़ा होगा, कितना सेंसिटिव होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करना चाहते होंगे। तो अपने प्रोजेक्ट की मुनासिबत से देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि जो डिकम्पोजिशन हुई है वो अप्रोप्रिएट हद तक हो गई है। क्या अप्रोप्रिएट, जहां तक कंट्रोल एक्सरसाइज करना था वहां तक आपका वर्क पैकेज बन गया है। अगर बन गया है तो गुड हो गया जी। उसके बाद फर्दर ब्रेकडाउन आप अपने नीचे वाले लोगों को दे दें कि भाई इसको तुम टीम मेंबर जो है या टीम लीड जो है वो बैठ के इसको मजीद तोड़ो इस काम को, और इसके हिसाब से तो काम कर रहे हैं। आपके सामने अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो PMBOK में भी दी हुई हैं और अदरवाइज भी आप इनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ इस एग्जांपल में जो आपके सामने है, here you have got a WBS with a good example of a WBS in which आपको इसमें ये दिखाया गया है, नंबरिंग स्कीम दिखाई गई है। अगर प्रोजेक्ट का नाम है वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट 1.0, तो इसके अगर मैंने 4 पार्ट्स बनाए हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, तो सब खुलेंगे। तो 1.1 को उसने खोल के दिखा दिया कि 1.1 के अंदर फर्ज करें नीड असेसमेंट उसका नाम है। 1.1 को मैं नीड असेसमेंट करने के लिए मैं करंट सिस्टम ऑडिट है, रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन है, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तो ये 1.1.1, 1.1.2 वगैरह। इसी तरह 1.1.1 को खोला उसने कहा मजीद इसके कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन है, कंपोनेंट एनालिसिस है वगैरह वगैरह। अब आप अगर यहाँ देखना चाहें तो पहला लेवल था प्रोजेक्ट का, दूसरा प्रोजेक्ट ये जो 1.1 वाला है, तीसरा प्रोजेक्ट ये वाला है, और चौथे पे डेफिनेटली आपको वर्क पैकेज मिल जाता है। 3 पे मिल जाए तो और ज्यादा मजे की बात है, लेकिन अगर 4 पे मिलता है तो गुड एनफ। ये आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह रहा यार कि 5वें लेवल पे WBS वर्क पैकेज हो नहीं सकता, हो क्यों नहीं सकता, लेकिन बात सिर्फ ये है कि एक तो या तो आपका प्रोजेक्ट बहुत डीप है इस वजह से 5वें लेवल पे आया है, और या फिर आप माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है। तो किसी भी सूरत में अगर ऐसा है तो आप 5वें लेवल तक भी जा सकते हैं। याद रखिएगा जितने लेवल बढ़ाएंगे उतनी मैनेजेबिलिटी डिफिकल्ट होती चली जाएगी, रिकॉर्ड कीपिंग डिफिकल्ट होती जाएगी। इसी वजह से इन नंबर्स को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इन एक्टिविटीज के सबके नाम तो मिसस्पेल भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, नंबर कभी गलत नहीं हो सकता। तो जब अकाउंट बजट दिया जाता है और हिसाब किताब किया जाता है तो अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए ये नंबर जो लगा दिए हमने ये यूज किए जाएंगे। तो डीकम्पोजिशन के ऊपर हमने जो बात की, WBS स्ट्रक्चर में बी क्रिएटेड थ्रू वेरियस अप्रोचेस। सम ऑफ द पॉपुलर मेथड्स इंक्लूड the top-down approach, the use of organizations specific guidelines, and the use of WBS templates.
बल्कि मैं ये कहूंगा एक और भी है अप्रोच जो बल्कि लिखा भी हुआ है नीचे, अ बॉटम अप अप्रोच कैन बी यूज्ड टू ग्रुप सब कंपोनेंट्स। ये बड़ा मजेदार काम है कि आमतौर पे हमारा दिमाग तो हमें यही कहता है कि अगर किसी चीज को तोड़ना है तो ऊपर से नीचे की तरफ तोड़ा जाएगा, और ये ट्रेडिशनल मेथड यही है कि टॉप डाउन अप्रोच में हम जाते हैं। या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अपनी हिदायत जारी कर रखी है कि डब्ल्यूबीएस ऐसे नहीं ऐसे बनाया जाए, उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, या अगर कोई टेम्पलेट आपके पास मौजूद है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे इससे सिमिलर प्रोजेक्ट आपने पहले कोई किया है, उसकी टेम्पलेट उठा लें और आप कहें जी ये चीजें इसके हिसाब से हम कर लेते हैं। लेकिन बॉटम अप अप्रोच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। टॉप डाउन में मैंने ज्यादा तौर पर ये चीज ऑब्जर्व की है कि जब हम टॉप डाउन बनाना शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को कितने हिस्सों में बांटा जाए, तो लाजमी बात है कि इस पर डिस्कशन लॉन्च हो जाती है और बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाती है, एंड वी डू नॉट रीच टू सम कंक्लूजन वेरी इजीली। और टॉप डाउन अप्रोच के अंदर बड़ा टाइम लगता है डिस्कशंस में और डब्ल्यूबीएस को फॉर्म करने में। और इसकी एक बड़ी खराबी और भी है, और वो ये है कि चूंकि हम सब मिलके एक डायरेक्शन में सोचना शुरू करते हैं तो हमारी सोच का डायरेक्शन मुतय्यन हो जाता है। हम उससे दाएं और बाएं नहीं सोच सकते या नहीं झांक सकते, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का रास्ता बंद हो जाता है, और ऐसे बहुत से काम जो इस प्रोजेक्ट में होने चाहिए थे हमें नजर ही नहीं आएंगे। हम कहेंगे बस हम इधर जा रहे हैं सीधे इस रास्ते के ऊपर, इस रास्ते में ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, सीक्वेंस में सोच शुरू हो जाती है। वो जो मैंने आपको मना भी किया कि डोंट थिंक इन सीक्वेंस व्हेन क्रिएटिंग डब्ल्यूबीएस, तो थोड़ी क्रिएटिविटी को जन्म देने के लिए या उसको जिंदा रखने के लिए आपको ये किसी और तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा। टॉप डाउन इसके लिए बुरी है। आपने शायद एक लफ्ज सुना होगा, उसे कहते हैं जी ग्रुप थिंक। क्या ख्याल है जी, किसी को अंदाजा है ग्रुप थिंक क्या क्या मतलब है? अवैस आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज ग्रुप थिंक? जी जनाब, ग्रुप थिंक का क्या मतलब है? एनीवन? की आवाज आ रही है? लगता है आवाज नहीं आ रही। एक मिनट चैट चेक करता हूँ। सर जी 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 बोलिए बोलिए। जी जी बोलिए। मैं कह रहा था मुझे इसका नहीं, मैंने नहीं सुना इसका ग्रुप थिंक का। अच्छा अच्छा ओके जी। एनीवन एल्स? अहमद आपका क्या ख्याल है, ग्रुप थिंक का क्या मतलब है? Sir, I have no idea. Okay. This is all new. Yeah. जब एक से ज्यादा लोग मिलके कोई बात डिस्कस करते हैं तो जिस शख्स की शख्सियत ज्यादा फोर्सफुल होती है उसके ख्यालात बाकी ग्रुप चाहते हुए या ना चाहते हुए खुद ब खुद अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। मतलब उससे मुतासिर होके उसी तरह सोचना शुरू कर देता है, उससे एग्री करना शुरू कर देता है, और अपना सर ये अल्फा मेल वाला जो कॉन्सेप्ट है, तकरीबन वो बात बनती है। हाँ वो बात बनती है, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। ग्रुप थिंक इज अ बैड थिंग, ठीक है जी। तो हम क्रिएटिविटी किल कर देते हैं जब हम ग्रुप थिंक करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हम इससे ब्रेक फ्री करें। जब दो भी बंदे अगर मिलेंगे तो जो एक ज्यादा मुतासिर कुल बंदा होगा या सीनियर होगा फॉर दैट मैटर, तो दूसरा बंदा कहेगा यस सर आप ठीक कह रहे हैं सर, भले वो गलती क्यों ना कह रहा हो। और मैं ब्रिलियंट आइडिया भी लेके गया हूँ तो मैं इस बात से डरता रहूंगा कि यार वो कोई नापसंद ना कर ले, और फिर वो बात जो दूसरा बंदा कोई बात करे और वो बात मेरी बात के बिल्कुल ऑपोजिट भी होगी, तो मैं अनकॉन्शियसली उससे एग्री करना शुरू कर दूंगा और अपने ख्याल को उठा के गटर में फेंक दूंगा। तो इसे कहते हैं जी ग्रुप थिंक, कि जब एक ग्रुप मिलके कोई चीज डिस्कस करता है तो उसकी अप्रोच एक मुतय्यन हो जाती है और वो फिर उसी एक डायरेक्शन में सोचना सब शुरू कर देते हैं, और जितनी भी उसमें इनोवेशन के या क्रिएटिविटी के रास्ते होते हैं वो खुद ब खुद सील होते चले जाते हैं। तो इसके अंदर जो टॉप डाउन है इसके अंदर ग्रुप थिंक का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। जबकि बॉटम अप में हम क्या करते हैं,
बॉटम अप में हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं कि टीम को कहते हैं कि भी आप सारे जमा हो जाओ जिन लोगों ने काम करना है, और आप खुद सोचो कि क्या क्या काम इस प्रोजेक्ट में करने पड़ेंगे। वो एक्टिविटी या वर्क पैकेज लेवल पे वो सोचना शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ सोचना शुरू करते हैं। बल्कि उन्हें पहले तो सिर्फ नीचे ही कहा जाता है कि आप सोचो यार, एक्टिविटी सोचो क्या क्या होंगी। अच्छा, अब होगा क्या कि बहुत से लोग हैं वो सब इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं, डिस्कस नहीं कर रहे। बॉटम अप में डिस्कशन कोई नहीं होती, बॉटम अप में सब इंडिपेंडेंटली सोच रहे हैं और हर एक को कहा है कि भाई तुम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी तुम्हारे ख्याल से, उनको लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो सबने सबको दिया एक टाइम दे दिया, जैसे कि हमने 15 मिनट या आधा घंटा दे दिया कि भाई हर बंदा इंडिपेंडेंटली जो जो एक्टिविटी जहन में आती है लिख ले। अब जरा गौर कीजिए कि अगर 20-30 लोग हैं और हर बंदा 30-30 एक्टिविटीज लिख के लाता है, 1 मिनट में एक एक्टिविटी भी लिखता है, 30-30 एक्टिविटीज लिख के आता है, तो आपके पास 900 एक्टिविटीज आ जाएंगी। और इसके अंदर कोई कैद नहीं है कि किसी और ने कुछ कहा तो वो आइडिया डिस्कस होगा। इसके अंदर बिल्कुल वेरिड आइडियाज भी आ जाएंगे और कई चीजें ऐसी भी आ जाएंगी जो कि कॉमन होंगी। जब इन सब चीजों को हम इकट्ठा करेंगे तो कॉमनैलिटीज अपनी जगह पे आ जाएंगी, लेकिन वेरिएशन जो है वो भी नजर आने लगेंगी। हम कहेंगे ओहो, ये तो चीज हम भूल ही गए थे। अच्छा, फिर उसमें कुछ कचरा भी होगा, मतलब किसी बंदे ने बहुत बारीकी में चला गया, कोई बहुत सतही रह गया, तो वो कचरा भी हम निकाल देंगे बीच में से। जब कचरा निकाल देंगे, कॉमनैलिटीज अडॉप्ट कर लेंगे और क्या कहते हैं, जो वेरिएशन, जो अच्छी वेरिएशन हैं उनको भी एंटरटेन कर लेंगे, तो अब हमारे पास एक मुकम्मल सेट ऑफ एक्टिविटीज जो कि से कि वो कोई 150 एक्टिविटीज बची हैं, वो 150 एक्टिविटीज हमारे सामने बच गई हैं। अब क्या करना है, अब हमें ये काम करना है कि इन 150 एक्टिविटीज को ग्रुप्स में बांटना है। एक जैसी एक्टिविटीज कौन सी, यहाँ पे भी मैंने कोई सीक्वेंस कोई चीज नहीं सोचनी। मैं कहूंगा अच्छा यार, ये मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यार ये सारी एक्टिविटीज जो है ना, ये इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड है, इनको एक तरफ कर दो। ये एक्टिविटीज फलाने से रिलेटेड है। किसी भी तरीके के साथ आप उस काम की ग्रुपिंग कर दें। ये जनाब बॉटम अप अप्रोच जो है, ये एक्टिविटीज को इनोवेटिवली आइडेंटिफाई करने और उनको ग्रुप करने का काम देती है। और इसी ग्रुप्स को मैं ऊपर की तरफ जाके अपने प्रोजेक्ट से मिला दूं तो पूरा डब्ल्यूबीएस बन गया। और एक मैं हाइब्रिड अप्रोच इस्तेमाल करता होता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हम ऐसा करें कि हमारी एक तो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव टाइप की टीम होती है ना, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट, उसे कहते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर और जो बड़े सुपरवाइजर्स और जो भी प्लानर्स हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वो लोग सारे उसमें शामिल होते हैं। वो लोग एक अलग जगह पे बैठ के टॉप डाउन तरीके के साथ ब्रेकडाउन शुरू करते हैं, वेयर द रिमेनिंग टीम मेंबर जो हैं उनको एक आदमी फैसिलिटेट करता है और वो लोग बॉटम अप काम करना शुरू करते हैं। अब जनाब जो टॉप लेवल टीम है वो ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट को किस तरह से ऊपर से डिवाइड किया जाए। वो 1 या 2 लेवल ऊपर डिफाइन कर देते हैं और वो नीचे वाली टीम इन द मीनवाइल वो लोग नीचे का स्ट्रक्चर या एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, तो उनको कहा जाता है कि आप इसके नीचे जोड़ दो। ये जो हमने सब डिविजन्स किए हैं, इसमें जो जो एक्टिविटी जहां फिट होती है उसके नीचे जोड़ दो। जब वो उसके नीचे जोड़ते हैं तो डब्ल्यूबीएस बन जाता है। तो दिस इज अ हाइब्रिड अप्रोच एंड इसके अंदर किसी चीज के मिस होने का इम्कान नहीं रहता। फर्ज करें कोई एक एक्टिविटी है जो भी आपने वो सब डिविजन्स बनाई हैं टॉप डाउन में, उसमें से कहीं फिट नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस एक्टिविटी के लिए कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये लम्हा फिक्रिया होगा टॉप डाउन बनाने वालों के लिए कि हाँ यार, ये एक्टिविटी अगर जायज है तो इसको फिट कहाँ किया जाए। पता चलेगा उसके लिए शायद एक और ब्रांच बनानी पड़ेगी, और जब वो नई ब्रांच बनाएंगे तो 10 और एक्टिविटीज उसकी हमारे जहन में आ जाएंगी। तो इसमें कुछ मिस होने का चांस नहीं रह जाता। तो ये है जी डीकम्पोजिशन। WBS स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स। आप उसको, जैसे मैंने बताया आपको, कि यूजिंग फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल as a second level of decomposition with the product and project deliverables inserted at the third level, फिगर 5.13 में जो किया गया ये। और कोई भी तरीके हैं यूजिंग मेजर डिलीवरेबल, आप डिलीवरेबल से ही तोड़ना शुरू कर दें जिसको प्रोडक्ट ब्रेकडाउन कहते हैं, या आप कोई सब कंपोनेंट बना लें उसके हिसाब से तोड़ना शुरू कर दें, जैसे भी आप करें। आप मिसाल के तौर पे ये 5.13 है, इसके अंदर उसने ये तरीका इस्तेमाल किया कि उसने मेजर चीजें उसके सेक्शन बना दिए और उसके नीचे अपने अपने काम कर दिए। इसी तरह
ये आप देख रहे हैं ना 5.13 सैंपल WBS ऑर्गेनाइज्ड बाय फेज, उसने फेजेस ऊपर लिखी हुई हैं और फेजेस के हिसाब से उसने ब्रेक किया हुआ। अगर आप इसे आगे चलें तो इसके अंदर उसने मेजर डिलीवरेबल्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट के, उसको सेकंड लेवल पे शो किया है और उसके नीचे हर एक को तोड़ लिया है। तो किसी भी तरीके के साथ ये ब्रेकडाउन आप बना सकते हैं। सो decomposition of the upper level WBS components requires subdividing the work for each of the deliverables or subcomponents into its most fundamental components, where the WBS components represent verifiable products, services or results. अगर एजाइल तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो एपिक्स कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू यूजर स्टोरीज। अब मुझे यहाँ शायद ये बताना पड़ेगा कि एपिक्स और यूजर स्टोरीज क्या होती हैं। एनी आइडिया? किसी को पता है कि ये एपिक क्या है, यूजर स्टोरी क्या है? एनी आइडिया? जी जनाब। अहमद, आईटी से कौन है जी आप में से? आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इससे किसी का ताल्लुक है? शहरयार, आपका क्या एरिया है? हेलो सर, बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट, अच्छा चलें जी। नहीं पता आप लोगों को तो मैं ये बताता हूँ, एजाइल में जो कि नॉर्मली आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो रही है आजकल, लेकिन साथ में ये भी कहता चलूं कि एजाइल इज नॉट ओनली फॉर सॉफ्टवेयर आईटी। ये अभी दुनिया के सारे मेथड्स के अंदर एजाइल आने वाला है और इस्तेमाल हुआ करेगा। और यही वजह है कि पीएमआई ने हर चीज के अंदर, हर चैप्टर के अंदर एजाइल का जिक्र किया हुआ, क्योंकि अब जो आने वाला दौर है वो सब एजाइल आने वाला है, एजाइल अप्रोचेस पे काम हुआ। इसमें कहता हुआ ये है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का काम प्रोडक्ट ओनर के पास होता है। प्रोडक्ट ओनर इस तरह की बला है जैसे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो रोल प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का है, मतलब अल्टीमेट जो बॉस है बड़ा आपके प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होता है। तो इधर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को हम प्रोडक्ट ओनर कहते हैं। प्रोडक्ट ओनर का बाकायदा रोल है यहाँ पर। मतलब इधर तो हमारे यहाँ तो बस प्रोडक्ट ओनर ने चार्टर लिखना है और दे देना है और बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर जाने उसका काम। लेकिन वहां पे क्या है एजाइल में कि प्रोडक्ट ओनर की बड़ी जिम्मेदारी है, उसने स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट उसी ने करना है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसी ने उठानी है। और वो उठाने का तरीका, रिक्वायरमेंट उठाने का तरीका भी बड़ा कोई प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि किसी फॉर्मेट के ऊपर एक चीज उठाई जा रही है। बेसिकली वो कस्टमर से जाके एग्जाम्पल्स पूछता है, कहानियां सुनता है, अच्छा यार मिसाल देके समझाएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसको वो जो किस्से कहानियां वो शेयर करता है कस्टमर इसके साथ, उसको कहते हैं एपिक्स। एपिक्स का जो उर्दू में वाक्य है वो है किस्सा, किस्सा ख्वानी। सो किससे सुनता है जाके कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि यार ये जो चीज बनानी है इसके ऊपर इस तरह का एंटीना लगाओ, तो मतलब इसकी कोई कोई मुझे एग्जांपल दें किस तरह का। हो सके जैसे वो फलानी फिल्म है ना, उस फिल्म में जैसे उस चीज के ऊपर एंटीना लगा हुआ था, वो उस तरह का। तो या कोई आप उसमें इम्पर्सनेशंस करते हैं, आप उसमें पर्सोनास क्रिएट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मिस्टर शीदा है और ये फलाने को ये चीज देता है, जब वो दे तो उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो इसमें एपिक्स के साथ एक और चीज आ जाती है, उसे कहते हैं पर्सोनास। जो झूठ मूठ के सिंबॉलिक करेक्टर्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं उस कहानी को सुनाने के लिए, उनको पर्सोनास कहते हैं। और जो किससे वो जो आपका कस्टमर आपको बता रहा है बात समझाने के लिए, वो एपिक्स है। दरअसल सारी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की हैं उन एपिक्स के अंदर बंद है, और आपने उन एपिक्स को अभी एज अ प्रोडक्ट ओनर ने उन सारी एपिक्स को उठा के एक प्रोडक्ट बैकलॉग, एक डब्बा बनाया हुआ है, वो जो किस्सा सुनता है उसमें डाल देता है, उस डब्बे में डाल देता है, उसका नाम है प्रोडक्ट बैकलॉग। अभी इसके अंदर जब सारे एपिक्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये उसकी जिम्मेदारी है प्रोडक्ट ओनर की कि वो इन किस्सों को रिफाइन करे। मतलब हो सकता है एक किस्से के अंदर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हो कि ये भी हो, उसमें वो भी हो और वो भी हो, तो वो रिक्वायरमेंट्स को अलहदा अलहदा करे और उनको एक साइज का किस्सा बनाए
अब ये किस्सों का जो रिफाइनमेंट है, जो उनकी ब्रेकडाउन है, ये नॉर्मली वो अकेला नहीं कर सकता। तो वो जिन लोगों ने प्रोजेक्ट में काम करना होता है आगे जाके, उनको जो प्रोजेक्ट स्क्रम मास्टर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उन लोगों को बुला लेता है और उन्हें कहता है कि मेरे साथ बैठो और आके इन एपिक्स को हम डिस्कस करते हैं और इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ये तो ब्रेक डाउन की बात हो रही थी, डिकम्पोजिशन की। तो एपिक्स ब्रेक डाउन होती हैं इनटू यूजर स्टोरीज। एक एक रिक्वायरमेंट की एक एक यूजर स्टोरी बनती है, उसमें भी पर्सोनाज इस्तेमाल होते हैं। तो एपिक्स को ब्रेक करके हमने एक एक यूजर स्टोरीज बना दी और ये यूजर स्टोरीज हमने यहां डाल दी। इसको कहते हैं रिफाइंड यूजर स्टोरीज। अब जब प्रोडक्ट लॉग जो है ये रिफाइन हो चुका है, पहले एपिक्स थे ना, इसको रिफाइंड नहीं था, तो अब इसको सफाई करके सबको एक साइज का काट के हमने यूजर स्टोरीज बना के इसमें डाल दी है। मगर अभी तक ये प्रायोरिटाइज नहीं है, पहले क्या काम करना है, ज्यादा जरूरी कौन सा काम है, वह कौन सी प्रायोरिटी में चीजें ऊपर होंगी। तो वो तरतीब फिर डिजाइन की जाती है जिस तरतीब में ये सारे काम होने हैं। तो वो तरतीब जो है वो उसमें उन कामों को लगा दिया जाता है। सबसे हायर प्रायोरिटी ऑर्डर में जो चीज है वो ऊपर आ जाती है। तो प्रोडक्ट लॉग जब प्रायोरिटाइज हो जाता है तो हम उसे कहते हैं प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग या रिफाइंड एंड प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट बैकलॉग। तो ये जब इस हालत में होता है, अब ये डुएबल फॉर्मेट में है। अब जब हम कोई स्प्रिंट शुरू करते हैं तो उसकी टीम आती है, उसे हम कहते हैं ये पड़ा हुआ प्रोडक्ट बैकलॉग, इसमें से तुम बताओ तुम्हारे पास 4 हफ्ते हैं, कितना काम करोगे। वो कहते हैं सर 1 मिनट, हम आपस में डिस्कस करके बताएंगे कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है और हम कितने काम कर सकते हैं। वो कहते हैं जी हम इनमें से ये पहले 10 काम जो है ये उठा के ले जा रहे हैं और ये हम करने की कोशिश करते हैं। वो 10 काम उठा के ले जाते हैं, ले जाकर वो अपने स्प्रिंट के अंदर एक डब्बा उन्होंने भी रखा होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। वो 10 काम उसके अंदर डाल देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ऊपर और सबसे कम प्रायोरिटी वाला नीचे। ये वही वहां से जो लेके आए थे प्रोडक्ट बैकलॉग से, अब उन्होंने स्प्रिंट में रख दिया, स्प्रिंट के बैकलॉग में। अब ऊपर से एक एक काम उठाते जाते हैं, करते जाते हैं, एक एक काम उठाते जाते हैं, करते जाते हैं। जब ये 10 काम खत्म हो जाते हैं तो वहां से इसको रिफिल कर लेते हैं अपने बॉक्स, नए नए काम उठा के ले आते हैं। लेकिन काम टाइम वही 4 हफ्ते का है। अगर 4 हफ्ते गुजर गए तो जितने काम हो गए उतने कंप्लीट माने जाएंगे। अगर वो 12 काम कर लेते हैं तो 12 माने जाएंगे, अगर वो 7 काम करते हैं तो 7 माने जाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ज्यादा काम कर लिए हैं या कम काम कर लिए हैं, मगर इससे ये डिटरमिन जरूर होता है कि आपकी जो टीम है, क्योंकि टीम टू टीम आपकी जो कोहेजन है वो फर्क होती है। इस टीम की उसे कहते हैं टीम वेलोसिटी। आपको अपनी टीम की वेलोसिटी का अंदाजा हो जाता है। अगली बार अगले स्प्रिंट में काम उठाते हुए आप अपनी इस वेलोसिटी को मद्देनजर रखेंगे और ज्यादा अप्रोप्रिएटली सही नंबर ऑफ टास्क उठा सकेंगे। याद रहे कि हर टास्क का कोई एक लेवल ऑफ क्या कहते हैं डिफिकल्टी या हार्डनेस होता है कि यार इसके ऊपर कितने यूनिट काम होने हैं। तो वो यूनिट्स असल में आपके वेलोसिटी डिटरमिन करते हैं। और आप कहते हैं जी हम तो 35 यूनिट काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा ये पहला काम 4 यूनिट का है, दूसरा काम 5 यूनिट का है, तीसरा 2 यूनिट का है, तो ये 35 यूनिट तक के काम उन्हें उठाने हैं क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो है वो 35 है। तो ये जनाब थोड़ी सी डिस्कशन होगी एपेक्स के बारे में, आपके यूजर स्टोरीज के हवाले से, और ये कैसे रिलेट करता है डब्ल्यूबीएस में, क्योंकि हम एपेक्स को ब्रेक डाउन करके यूजर स्टोरी बना रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं। ये बात समझ आई थी किसी को? मुझे यकीन दिलाते रहें कि आप लोग मेरे साथ हैं। जी जनाब, मुझे तो लग रहा है मैं हवा में बातें कर रहा हूं। अच्छा जी, खैर, verifying the correctness of the decomposition requires determining that the lower level WBS components are those that are necessary and sufficient for completion of corresponding higher level deliverables. तो मतलब जो डिकम्पोजिशन आपने की है, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपके लोअर लेवल मतलब जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो WBS और वर्क पैकेजेस या ऊपर उससे ऊपर का लेवल है, वो जरूरी थे ऊपर के कंपोनेंट्स के साथ लिंक करने के लिए, या जिस डिलीवरेबल को आप अचीव करना चाह रहे हैं उस डिलीवरेबल के हसूल के लिए इन लेवल्स का होना जरूरी था। देखें यहाँ पे फिर वही स्कोप का लेसन याद रखिएगा
कि ऑल द वर्क एंड ओनली द वर्क। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई गैर जरूरी चीज एंटर नहीं होनी चाहिए। इस WBS के अंदर कोई गैर जरूरी काम एंटर नहीं होना चाहिए जो डिलीवरेबल बनाने के डिलीवरेबल की तकमील में मुआविन साबित नहीं हो रहा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई काम जो होना चाहिए था लाजमी, जिसके बगैर वो चीज बन नहीं सकती थी, वो करना भूल जाएं। दोनों काम नामुमकिन है। तो इसका मतलब है कि आपको अच्छी तरह से इस बात का ख्याल रखना होगा। डिफरेंट डिलीवरेबल्स कैन हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिकम्पोजिशन। अब ये बात आप समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट में शायद डिलीवरेबल जो है वो 5वें लेवल तक जाके डिकम्पोज हो और एक में तीसरे में हो जाए। To arrive at a work package, the work for some deliverables need to be decomposed into only to the next level. एक ही WBS के अंदर हो सकता है जो आपकी जो 4 ब्रांचेस बनी हुई हैं उनमें से एक तो मजीद खुल ना सकती हो और वो एक आध लेवल तक ही मजीद खुले और दूसरी जो है वो और 2 3 4 लेवल तक खुल जाए। ऐसा मुमकिन है और ये जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा चार्ट जो है एक ही लेवल तक नीचे खुलेगा। हो सकता है एक ब्रांच ज्यादा खुल जाए, एक कम खुल जाए। दैट इज बट नेचुरल, ऐसा मुमकिन है। टू अराइव एट अ वर्क पैकेज, द वर्क फॉर सम डिलीवरेबल्स नीड्स टू बी डीकम्पोज ओनली टू द नेक्स्ट लेवल, जैसे मैंने कहा, और जबकि अदर्स का कोई और लेवल तक जो जा सकता है। As the work is decomposed to greater levels of detail, the ability to plan, manage and control the work is enhanced. जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे उसके बारे में उतनी ज्यादा समझ पैदा होगी। लेकिन एक बात मैंने पहले भी क्लियर की थी, देयर इज अ लेवल ऑफ, जिसे कहते हैं सैचुरेशन होता है। एक खास लेवल ऑफ सैचुरेशन है जिसके ज्यादा डेप्थ में चले जाने से काम खराब होना शुरू हो जाता है। ना तो बहुत ही कम डिटेल अवेलेबल हो तो काम हो सकेगा, ना ही बहुत ज्यादा डिटेल भी अगर अवेलेबल हो जाएगी तो भी वो माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ चला जाएगा, तो भी गड़बड़ होने का इम्कान है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है कि इसको उस वक्त तक उस जगह तक तोड़ें जहां तक अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएटनेस से आगे जाएंगे अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, उससे पीछे रहेंगे तो भी अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो अप्रोप्रिएट लेवल आपने खुद समझना और डिसाइड करना। However, जैसे उसने मैंने कहा आपको, however excessive decomposition can lead to non-productive management effort. बारीकी में चलेगा ना, माइक्रो मैनेजमेंट में चले गए। Inefficient use of resources, decreased efficiency in performing the work and difficulty aggregating data over different levels of the WBS. ये आपको अपनी अकल से ये फैसला करना पड़ेगा कि कितना नीचे तक जाना है। Decomposition may not be possible for a deliverable or subcomponent that will be accomplished far into the future. ये बात अभी वो थोड़ा उसके हवाले से आगे कि there are certain portions of the project जिनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे अभी नहीं पता कि ये वाला पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे डिकम्पोज होगा, इसके अंदर क्या क्या होगा, अभी मुझे पता ही नहीं है। ऐसी चीजें जिनको नहीं खोला जा सकता और नहीं समझा जा सकता, इनको हम कहते हैं प्लानिंग पैकेजेस। प्लानिंग पैकेज वो पैकेज है जिसको अभी खोला नहीं जा सकता, जिसके बारे में अभी डाटा अवेलेबल नहीं है और इसको हम ऐसे बंद ही रखेंगे। जब कभी भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी और इसे खोला जा सकेगा तब हम इसको खोल लेंगे। मतलब ये हुआ कि WBS में बाकी सब कुछ खुल गया, लेकिन ये एक डब्बा है जो ब्लैक बॉक्स की तौर पे बंद है, क्योंकि इसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है। लेकिन जो ही आपको पता चल जाए तो इसे खोल लें, तो इसको कहते हैं प्लानिंग पैकेज। तो ये इस तरह के प्लानिंग पैकेज, एक तो मैंने आपको वर्क पैकेज की बात बताई, तो ये इस प्लानिंग पैकेज का लेवल कोई भी हो सकता है और लाजिम बात है कि ये प्लानिंग पैकेज शायद वर्क पैकेज से भी ऊपर कहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक प्लानिंग पैकेज को जब खोला जाएगा उससे फिर वर्क पैकेजेस भी बन सकेंगे और फिर वर्क पैकेजेस बाद में उससे एक्टिविटीज भी बन सकेंगे। तो डीकम्पोजिशन जो है ये इस लेवल। Project management team usually waits until the deliverable or subcomponent is agreed on so the details of the WBS can be developed. The technique is sometimes referred to as rolling wave planning. ये जो तरीकाकार है कि जैसे जैसे तफसीलात वाज़े होती जाएंगी हम और मजीद तफसीली प्लान बनाते चले जाएंगे, इसको
हम रोलिंग वेव प्लानिंग कहते हैं। ये दरअसल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन के नाम से पहले भी पढ़ा और सुना हुआ है। प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन में भी हमने यही कहा था कि जैसे जैसे जी जी सर ये लास्ट थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ये जो आखिरी वाली चीज बताई थी आपने, रोलिंग वेव वाली। यस सर, यस सर। वो कहते हैं कि जी जैसे ही अभी आपको एग्जांपल दी कि डीकंपोज करते हुए एक ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है और मैं उसको मजीद तोड़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मैं एक अस्पताल बना रहा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे सब पता है कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं सारा कुछ, लेकिन एक कमरा ऐसा है इस अस्पताल में जिसके अंदर एक खास कोई मशीनरी लगनी है, जिसका कोई पता नहीं एक्सरे मशीन है या क्या चीज लगनी है, और उसकी मेंटेनेंस की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसे किस किस्म का मटेरियल होगा, कैसा टेम्परेचर मेंटेन करना है, कैसी वॉल्स होनी चाहिए वगैरह वगैरह, अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अस्पताल तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, वो तो बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बाकी सबके तो मैं WBS बना लेता हूँ, उसके डीकम्पोजिशन कर लेता हूँ, लेकिन ये जो कमरा है इसको मैं डीकम्पोज नहीं कर सकता, इसके वर्क पैकेजेस नहीं बना सकता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज सच एक ब्लैक बॉक्स की सूरत में डब्बा काले रंग का बना के छोड़ देता हूँ और कहता हूँ कि ये मेरा प्लानिंग पैकेज है। प्लानिंग पैकेज के बारे में जब कभी भी तफसीलात अवेलेबल हो जाएंगी तब हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे। इस इज कॉल्ड कि जब जैसे जैसे प्रोजेक्ट वक्त गुजरता जाता है और मजीद हकीकतें सामने आती जाती हैं तो हम उन ब्लैक बॉक्सेस को, उन प्लानिंग पैकेजेस को फर्दर प्लान करते जाते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ रोलिंग वेव प्लानिंग। रोलिंग वेव प्लानिंग में जैसे जैसे हकीकतें आश्कार होती जाएंगी मजीद प्लानिंग खुलती चली जाएगी। ये है रोलिंग वेव प्लानिंग। इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसे हमने कहा था प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन। प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन का मतलब भी यही था, लेकिन फर्क इन दोनों में यह है कि प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन इज अप्लाइड एट द स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फेजेस के लेवल पे जो काम हो रहा है उसमें जो हम वक्तन फवक्तन नई चीजें प्रोग्रेसिव जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नई चीजें सीखते जाएंगे और अपना प्लान अमेंड करते जाएंगे, प्रोजेक्ट की फेजेस बदलेंगी या कोई और हिसाब किताब होगा, तो वो वाला काम जो है वो प्रोग्रेसिव एलैबोरेशन है। लेकिन जहां हम वर्क पैकेजेस की बात करते हैं और एक्टिविटीज के लेवल के ऊपर ऐसा इबाम जब सामने आता है और हमें उसको चीजों को बाद में इंतजार करना पड़ता है मजीद खुलने का, जैसे इस केस में डीकम्पोजिशन के केस में, तो इसको हम कहते हैं रोलिंग वेव प्लानिंग। क्यों शहरियार, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि WBS बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी टाइम जैसे चेंजेस आती है तो हम इजीली इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, WBS में चेंजेस ला सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, लेकिन मसला फिर वही आ जाता है कि स्कोप अगर बेसलाइन हो गया है तो फिर चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मेरे भाई। चेंज रिक्वेस्ट किए बगैर आप फिर उसको नहीं आगे बढ़ा सकते। लेकिन अगर अभी तक बेसलाइन नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टेप है क्रिएट WBS का, क्रिएट WBS के अंदर बेसलाइन हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इसको बेसलाइन नहीं किया तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद कोई चेंज महसूस होती है तो फिर चेंज रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सॉर्टेड? यस सर, थैंक यू। ओके जी, आगे चलते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन और WBS के हवाले से एक प्रैक्टिस स्टैंडर्ड है PMI का अलग से, जिसका नाम है प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इसका बल्कि अभी तो 3rd एडिशन भी रिलीज होने वाला है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये और ज्यादा तफसील में आपको WBS के बारे में चीजें बताता है, और अगर खासतौर पे जो लोग प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको तो मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये स्टैंडर्ड जरूर पढ़ा करें ताकि आपका इससे फायदा हो। इम्तिहान के लिए ठीक है, आपका PMBOK काफी है आपके लिए 6 PMP के एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप सही सीखना चाहते हैं चीजों को और ज्यादा बेहतर, तो ना सिर्फ ये कि इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ें बल्कि और भी किताबें पढ़ा करें। तो WBS represents all products and project work, including the project management plan, project management work. Total of the work of the lowest levels should roll up to the higher level. अब अगर सारा काम मैं लोअर लेवल्स के जमा कर लूं कि ये सबसे जो वर्क पैकेज लेवल पे क्या काम हो रहे हैं और उन सारे कामों को सम कर लूं तो मुझे उनके ऊपर के लेवल का टोटल काम का पता चल जाएगा और प्रोजेक्ट के टोटल काम का पता चल जाएगा। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द 100% रूल। क्या कहा है जी उसने, शुड रोल अप, हाँ वही
कि काम 100% तभी होगा जब सारी चीजों का सम हो जाएगा। तो मतलब जितने भी वो पोर्शन आपने बनाए हैं उस सारे को जमा करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द WBS आपको स्टैंडर्ड मैंने बता दिया, इसको आप रेफर करें और उसे पढ़ें। दिस स्टैंडर्ड कंटेन्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ WBS टेम्पलेट दैट कैन बी टेलर्ड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन एरिया। इसमें अच्छा है कि आपको कुछ टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाती है एग्जांपल के तौर पे। टेम्पलेट मैंने पहले कहा था PMI खुद से कोई रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन यह है कि आपको एक एग्जांपल मिल जाती है कि सैंपल मिल जाता है। PMI की टेम्पलेट कोई नहीं। अच्छा जी, स्कोप बेसलाइन के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि स्कोप स्टेटमेंट WBS और WBS डिक्शनरी इसमें डाल दी जाती है और उसको बेसलाइन कर लिया जाता है। बेसलाइन होने के बाद आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बेसलाइन के अंदर अप्रूव्ड वर्जन आपके स्कोप स्टेटमेंट का होगा, WBS होगा और WBS की डिक्शनरी होगी, विच कैन बी चेंज्ड ओनली। अब जब एक दफा बेसलाइन हो गया तो इट कैन ओनली बी चेंज थ्रू फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसीजर एंड इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ फॉर कंपैरिजन। अच्छा, अब यही बेसलाइन जब कंट्रोल वैलिडेट वाला या कंट्रोल स्कोप वाला जब बैठा होगा वहां पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, तो वो स्कोप बेसलाइन सामने रखेगा और इसकी मुताबिकत में चेक करेगा कि क्या होना चाहिए था क्या है, और अगर वो चीज के मुताबिक नहीं है तो कहेगा स्कोप पूरा नहीं हुआ। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और स्कोप बेसलाइन, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, रिक्वायरमेंट प्लान, तीनों चीजें कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। बेसलाइन का क्या कंपोनेंट है, जैसे मैंने आपको बताया स्कोप स्टेटमेंट है, WBS है, वर्क पैकेजेस भी हैं, प्लानिंग पैकेजेस भी हैं, WBS डिक्शनरी भी, ये सब बातें मैं आपसे कर चुका हूं। मैं इनको स्किप कर रहा हूं जी, ये कुछ डेफिनेशंस ही हैं इनको। तो WBS डिक्शनरी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था कि WBS डिक्शनरी के अंदर आप बेसिक डेफिनेशन हर वर्क पैकेज के बारे में कुछ तफसीलात देते हैं। वो तफसीलात तो ये भी हो सकती हैं कि उसका उस वर्क पैकेज का नंबर, नाम और तफसील, या ये आपके सामने लिस्ट एक है, इस तरह से भी ये आइटम्स भी डाले जा सकते हैं। इसका कोड ऑफ अकाउंट क्या है, इसकी assumptions क्या है, इसके कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस ऑर्गेनाइजेशन की है, स्केड्यूल माइलस्टोन क्या है। तो मतलब वो चीजें भले वो डाटा अभी अवेलेबल हो या ना हो, बाद में अवेलेबल हो जाए, लेकिन कम से कम एक शीट तो बन जाए जिसके अंदर हर वर्क पैकेज को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सके। ये ऐसा ही है जैसे हमने रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाया था, तो इसी तरीके के साथ हम WBS डिक्शनरी बनाते हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर। जी आवाज आ रही? सर ये पिछले तकरीबन 10 मिनट से मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। मैं बाकियों से पता कर लें, पता नहीं हमको भी आ रही है नहीं। अच्छा, क्योंकि वो आवाज का तो मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट, क्या मैसेज है? नो वॉइस। अहमद कह रहे हैं नो वॉइस। ओके, अवैस आपको आवाज आ रही है? हाय गॉड यार, क्या मसला है? नहीं, मैं जरा एक दो फिर नेट को चेक करता हूँ, देखता हूँ कि कोई उससे फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। अवैस आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? स्पीड तो बहुत लो है, स्पीड इज वेरी वेरी लो। सर आई थिंक सिर्फ मुझे आ रही है, वो भी अभी आना शुरू हुई है। अच्छा, तो फिर मेरा ख्याल है इसको ब्रेक ही कर लिया जाए, क्या करें? बहुत लो स्पीड है जी।
चलें जी, मैं फिर ब्रेक कर रहा हूँ उसको। WBS तक हमने कवर कर लिया है, तो कल आप फिर इसके जो बाकी 2 पोर्शन हैं वो कर लेते हैं। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज।